Good morning, children. Students, this is our fifth video of chapter 1 French Revolution, and so far we completed the outbreak of the revolution and how France becomes a constitutional monarchy. Right, and we have started topic France abolishes monarchy and becomes a republic, section 3 of this chapter. So we will be continuing from here, and we were doing the formation of the Jacobin Club. The members of the Jacobin Club belong to the less prosperous section of the society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pottery makers, watchmakers, printers, servants, weavers, right, and daily wage workers, etc. Their leader was Maximilian Robespierre. So we have completed this topic so far, right? And the name of the Jacobin Club was given after the father who got it, who was the father in a convent of Saint Jacob in Paris. Okay, so in this way, Jacobin came to be known as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. So what was the meaning of knee breeches here? So you can see in this paragraph, last paragraph of this page, you can see the large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers, uh, you know, uh, that is similar to those worn by the dock workers. तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो here people were wearing knee breeches. They were the members of the Jacobin club. So similar kind of stripped pants and stripped trousers and skirts were worn by the dock workers. Same उन्हीं के जैसे जो clothes थे the Jacobin members start wearing. Okay, so this was to set themselves apart from the fashionable sections of the society. Means they want to show that कि वो society से different है. Okay, and they also in addition to the sans-culottes, they used to wear red cap that symbolized liberty. Okay, women however were not allowed to do so. Understood? सो चिल्ड्रन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपने आप को सोसाइटी में डिफरेंट दिखाना चाहते थे. दे वर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली फ्रॉम नोबल्स, राइट. तो नोबल पीपल यूज टू वियर नी ब्रीचेस, राइट. जो नोबल्स थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे. एंड जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज sans-culottes, मीन्स विदाउट नी ब्रीचेस. ओके, एंड दे यूज टू वियर द स्ट्रिप्ड cloths like stripped trousers, which is given in the picture. You can see here sans-culottes men wore, in addition to the red cap that symbolized liberty, women however were not allowed to do so. Okay, so in this way they gave them a kind of identity known as sans-culottes. In the summer of 1792, the Jacobin planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10th, they stormed the palace of Tuileries. Okay, so what happened? एक दिन सुबह 10 अगस्त 1792 की बात है. They stormed the palace of Tuileries. किन्होंने? जो sans-culottes थे. And they massacred the king's guard. जो किंग के गार्ड थे उनको उन्होंने मार दिया. And held the king himself as a hostage for several hours. और जो किंग थे उनको काफ़ी देर तक जो है वो हॉस्टेज करके रखा गया पैलेस में. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. अंडरस्टैंड? और जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको इम्प्रिजन कर दिया गया. जो असेंबली थी उन्होंने इनको इम्प्रिजन किया. इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन. ऑल men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote. And the newly elected members were called as the convention. जो newly elected members थे उनको convention कहा गया. ठीक है, convention क्योंकि ये फादर जो कॉन्वेंट से बिलोंग करते थे, सेंट जैकब कॉन्वेंट से थे. ठीक है, तो जो यहाँ पे टेररिस्ट पैलेस में अटैक करने के बाद वहाँ के किंग को जो है वो हॉस्टेज बना दिया गया. तो उसके बाद की ये घटना है कि एक असेंबली फॉर्म की गई और उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया.
Okay, on 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic. तो ट्यूलिरिस का जो पैलेस था, ठीक है, यहाँ पे आपने प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा कि जो ट्यूलिरिस पैलेस था वहाँ के जो किंग थे उनको हॉस्टेज बनाने के बाद उनको इम्प्रेशन कर दिया गया और वहाँ पे एक न्यू रिपब्लिकन गवर्नमेंट फॉर्म की गई 21 सितंबर 1792 को बाय द जैकोबिन मेंबर्स. एज यू नो, अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where the people elect the government including the head of the government. There is no hereditary monarchy. You can try and find out about some other countries that are republic and investigate when and how they become so. Okay, so here रिपब्लिकन कंट्री जो है वो स्टैब्लिश की गई एंड द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड एज कन्वेंशन. A republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government. There is no hereditary monarchy. ठीक है, तो ट्यूलिरिस पैलेस में जो है वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई और रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे हम कहेंगे कि फ्रांस में एक और पैलेस में जो है वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट फॉर्म हुई 1792 में और ये फर्स्ट टाइम एक गवर्नमेंट थी जो कि लोगों ने इलेक्ट किया था और यहाँ पे कोई भी हेरेडिटरी मोनार्क नहीं था. ओके, नाउ द किंग लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन. ठीक है, लुइस 16 को ट्रेजन के चार्ज में, ट्रेजन का मतलब है बीट्रेल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट. Understood. On 21 January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly. So what happened ultimately? जो लुई 16 थे उनको सेंटेंस कर दिया गया, उनको जो है वो पनिश किया गया. सेंटेंस गिवन बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन. तो ट्रेजन का मतलब था अगर कोई राजद्रोह करता है, राजद्रोह करता है, राइट, डिसलॉयल, उनको डिसलॉयल की पनिशमेंट दी जाती है. ठीक है, तो डिसलॉयलिटी की पनिशमेंट जो है वो लुई 16 को दी गई इस चार्ज पे क्योंकि उन्होंने जो प्रशा ऑस्ट्रिया के जो किंग थे उनके साथ मिल के सीक्रेट नेगोशिएशंस किए थे और वो सीक्रेटली लोगों पे जो है वो अटैक करने वाले थे. ये एक तरीके का ट्रेजन था. जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ऑलरेडी जो है वो ट्यूलिरिस पैलेस पे अटैक करके मैसेकर के थ्रू किंग और किंग के गार्ड्स को जो है वो मार दिया और किंग को होस्टेज बना लिया. ठीक है, इस तरीके से जो असेंबली थी उन्होंने रॉयल फैमिली को पनिश किया एंड देन दे अल्टीमेटली इस्टेब्लिश द रिपब्लिकन गवर्नमेंट. अंडरस्टैंड. एंड व्हाट हैपन, लुई 16 जो थे उनको पनिश किया गया, उनको डिसलॉयलिटी की पनिशमेंट दी गई और सेम वही कंडीशन जो है वो प्रिंसेस एंटोनियो का भी हुआ, उनको भी पनिश किया गया ट्रेजन के चार्ज में. ओके, पब्लिकली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड. अंडरस्टैंड, दोनों को जो है वो पब्लिकली मार दिया गया. नाउ लुक एट द सेक्शन 3.1. सो चिल्ड्रन, इस तरीके से फ्रांस में रिपब्लिकन कंट्री एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रिपब्लिकन स्टेट फॉर्म हुआ. तो ये पहला ऐसा रिपब्लिकन स्टेट फॉर्म किया गया बाय जैकोबिन क्लब. द रेन ऑफ टेरर मीन्स यर द रेन ऑफ fear which was started by रॉबर्ट्सपियरी गवर्नमेंट फ्रॉम 1793 टू 1794. ठीक है, 1793 से लेके जो 94 तक का जो टेन्योर था, जो रेजिम था, बेसिकली ये रॉबर्ट्सपियरी गवर्नमेंट थी जो जैकोबिन क्लब के अंडर में थी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट. इस टेन्योर को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना गया. ओके, ये ऐसा क्यों कहा गया रेन ऑफ टेरर इस शासन को? रॉबर्ट्सपियरी फॉलोड दी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रॉबर्ट्सपियरी गवर्नमेंट जो थी बेसिकली बहुत ही इनसिक्योर गवर्नमेंट थी और दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. उन्होंने सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की जो पॉलिसी थी वो फॉलो की. ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of the other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods.
ठीक है। जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स थे, एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी ग्रुप्स थे और पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स थे, इवन जो उसकी अपनी पार्टी के मेंबर्स थे जो उससे असहमत होते थे, नॉट दे वर नॉट एग्री विद हिज मेथड्स एंड पॉलिसीज, these people were arrested and imprisoned and then they tried by a revolutionary tribunal। ठीक है, उनके ऊपर केस चलाया जाता था। ओके, एंड इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलेटाइंड। और अगर कोर्ट उनको गिल्टी फाउंड करता था, गिल्टी होते थे वो लोग, तो उनको पनिश किया जाता था, गुलेटाइन कर दिया जाता था। द गुलेटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. सो चिल्ड्रन, ये गुलेटाइन क्या था? ये जो लोग गिल्टी होते थे उनको गुलेटाइन कर दिया गया, सिंपल। ठीक है, गिल्टी वर्ड से गुलेटाइन हम याद रखेंगे, और जिसने इनको इन्वेंट किया था वो भी डॉक्टर गुलेटाइन ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो पोल बनाए जाते थे, दो पोल्स के बीच में एक हम कह सकते हैं कि इट वॉज कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स अलॉन्ग विद द ब्लेड। ठीक है, एक ब्लेड होता था जहाँ पे किसी भी पर्सन को जो है वो बी हेडेड कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये एक पनिशमेंट जो है वो सीवियर पनिशमेंट थी जो कि रॉबर्ट्सपियरी ने फॉलो किया, एंड अल्टीमेटली पीपल goes against his policy against him. So what we understood here, children, that the period from 1793 to 1794 is basically referred as reign of terror, जिसको कि भय का शासन या रेन ऑफ टेरर, टेरिफाई किया गया लोगों को, इसीलिए रेन ऑफ टेरर कहा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि रॉबर्ट्सपियरी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो किया। ठीक है, और किस तरीके की बहुत ही हार्श पनिशमेंट जो है उन्होंने चूज़ किया, जिसकी वजह से जो लोग थे उनसे एक तरीके का लोगों में टेरर क्रिएट किया उन्होंने, राइट। और अपने ही पार्टी के अपने ही मिनिस्टर्स के लिए उन्होंने इस तरह के जो है वो रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश की। जो भी गिल्टी होता था उनको अरेस्ट किया जाता था और इम्प्रिजन कर दिया जाता था, and then they were tried by a revolutionary tribunal. Okay, so Robespierre government was it was not successful because of his severe control and his harsh policies. Okay, then in second paragraph we can see Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. उन्होंने क्या किया? ऐसे लॉज बनाए जिन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वेजेस दिए जाएं, ओके, और प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी जाए। मीट और ब्रेड व राशन, जितने फूड ग्रेन्स थे, मीट और ब्रेड को राशन कर दिया गया। पेजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो प्राइसेस गवर्नमेंट ने फ़िक्स की थी उन्हीं प्राइसेस पे उनको जो है ग्रेन्स सेल करना पड़ता था। ओके, द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो वाइट फ्लोर होता था उसका यूज़ जो है वो बंद कर दिया गया, और इवन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। तो ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द ब्रेड अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। तो सभी लोगों को जो है वो लोफ ऑफ होल व्हीट जो है वो सप्लाई किया जाने लगा। Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. That you can see here, it is written. Even equality was also sought to be practiced through forms and speeches. You can see here, लोगों के साथ इस तरीके के कंट्रोल और उनको कन्फाइन करने की जो प्रैक्टिस थी, that was not good. Okay, equality was sought to be practiced through forms of speeches and address. Like people they have to instead of traditional monsieur, sir, and madam, all French men and women were henceforth they had to speak citoyen, and citoyen means citizen. Okay, and even churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. Okay, finally he was convicted by a court in July 1794 because of his harsh policy. So
कितना टाइम का जो है वो रूल था स्टूडेंट्स उनका, सिर्फ ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए, ठीक है। रॉबर्ट्सबियरी की जो पॉलिसीज़ थी, it was so relentlessly that even his supporters began to demand moderations. Finally, he was convicted by a court in July 1794 and arrested, and on the next day sent to the guillotine. ओके, नेक्स्ट डे 1794 जुलाई में उनको अरेस्ट किया गया एंड फाइनली उनको भी गुलेटाइन कर दिया गया. तो इट वॉज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट established by the Robespierre government because of his harsh policies and decisions. So he created a kind of terror among the people. Okay, he should, instead of using welfare or good policies, he start using harsh policies, and which created terror among the people. So I think this topic is clear to you, everyone.